Very good morning to all our sweet CA Foundation students. So today we are discussing your paper number 1, Accounts, CA Foundation, mock test issued by ICAI, March 2021 series. Paper pattern, question number 1 is compulsory, answer any 4 from the remaining 5. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 1. State with reasons whether the following statements are true or false. Balance in the petty cash book represents an asset. Statement is true. Petty cash book is just like other cash books, 4 kinds of cash book. So petty cash book का जो balance होता है that definitely represents asset. Finished goods are normally valued at cost or market price, whichever is higher. Statement false है. Inventory valuation किस price पर होगा? Cost or NRV, whichever is lower. Then point number 3, subscriptions received for the current year shall be shown in the balance sheet as a current asset. Statement is false. Subscriptions received for the current year कहाँ शो करेंगे इसे? Yes, correct. Income and expenditure account. When shares are forfeited, share capital account is debited with called up capital of shares forfeited, and the share forfeiture account is credited with calls in arrears. Statement is false. शेयर forfeiture account में तो कौन सी मनी आती है जो हमने रिसीव कर ली है. Discount at the time of retirement of a bill is a gain for the drawee. Statement is true. Bills receivable, bills payable books are type of subsidiary books. Yes, हमारी 8 subsidiary books में से 2 ये हैं. Statement is true. तो चेक करते हैं ICAI के आंसर्स. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट आराम से एक बार रीड कर लीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट इजी है, क्लियर है. आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. Discuss the limitations which must be kept in mind
while evaluating the financial statements. तो सीधा सीधा अकाउंट्स की लिमिटेशंस पूछ रहे हैं. ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है. जैसे हम कहते हैं अकाउंट्स के अंदर विंडो ड्रेसिंग होती हैं, फिर हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड्स हैं जिसमें से चॉइस करना मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मेथड्स एक से ज़्यादा हैं तो कंपैरिजंस जो हैं वो मुश्किल हो जाते हैं. ये हमारी लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एक बार आंसर रीड कर लीजिए. The factors which may be relevant in assessing the worth of the enterprise don't find place in the accounts as they cannot be measured in terms of money. तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी, उनका हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब चीज़ें हम किताबों में नहीं दिखा पाते हैं ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. Then balance sheet shows the position of a business on a particular day. तो एक ही दिन की सिचुएशन दिखाती है, एक ही दिन की पोजीशन दिखाती है, ये लिमिटेशन है. अकाउंट्स में हम इन्फ्लेशन, इस टाइप के फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते हैं. There are occasions when accounting principles conflict with each other. Although ऐसे occasions तो बहुत कम हैं अब, बट येस हैं, इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है. Certain accounting estimates depend on the personal judgment. Different methods for the treatment of same items adds to the probability of manipulations. और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एज सच ये कोई लिमिटेशन नहीं है. अब कोई भी काम हम करेंगे तो कुछ ना कुछ कमी तो उसमें रह ही जाती है, लेकिन अब अगर हमें लिखनी ही है तो फिर ये सारी लिमिटेशंस लिखनी होंगी. ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. The following errors were committed by the accountant of Hariom Toys. Purchase from Anupam and Company passed through sales day book. हमने सामान खरीदा है तो एंट्री हमें बनानी थी परचेज टू अनुपम एंड कंपनी, है ना? करेक्ट एंट्री. एंट्री हमें बनानी है परचेज टू अनुपम एंड कंपनी. लेकिन हमसे गलती हो गई, हमने इसे सेल्स बुक से चार्ज कर दिया, यानी कि हमने कर दिया अनुपम एंड कंपनी टू सेल्स. अब ठीक करना है तो क्या करें? परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू अनुपम एंड कंपनी. लेकिन जब भी हमें रेक्टिफाई करने होते हैं एरर्स, तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारी स्टेज कौन सी है. तो देखते हैं, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर्स अज्यूमिंग दैट. वाह वाह, क्या क्वेश्चन है. क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ऐसा करो, तीनों स्टेजेस में रेक्टिफाई करो. 3 स्टेजेस हैं हमारे पास रेक्टिफिकेशन की. कह रहे हैं तीनों स्टेजेस के अंदर रेक्टिफाई करो. तो ठीक है, अगर हम स्टेज 1 की बात करें, सेम एंट्री बनेगी परचेज सेल्स टू अनुपम एंड कंपनी. स्टेज 2 की बात करें, सेम एंट्री बनेगी. क्योंकि एंट्री कंप्लीट हो गई है, सस्पेंस अकाउंट की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो परचेज सेल्स टू अनुपम एंड कंपनी. और अगर हम 3rd स्टेज में होते तो क्या करते? परचेज और सेल्स की जगह P&L एडजस्टमेंट टू अनुपम एंड कंपनी.
तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1C का फर्स्ट पार्ट का आंसर, रेक्टिफिकेशन एंट्री। आराम से आप इसको देख लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1600 टू सोनी एंड कंपनी। क्रेडिट सेल है, मतलब हमने एंट्री बनाई सोनी एंड कंपनी टू सेल्स, है ना, डेटर टू सेल्स। तो सोनी एंड कंपनी के अकाउंट को हमें करना था डेबिट, इट वॉज पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। हमें डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया। एक ही अकाउंट में गलती है, सिंगल साइडेड एरर है। सोनी एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन किस अमाउंट से करेंगे वो खास ध्यान रखना है। अमाउंट हमारा हो जाएगा 1600 का डबल, 3200। याद है, अगर आपने डेबिट का क्रेडिट किया या फिर आपने क्रेडिट का डेबिट किया तो एडजस्टमेंट किस अमाउंट से होती है, डबल अमाउंट से। रीज़न, हमने 2 गलती करी, जो करना चाहिए था वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। तो सोनी एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट करेंगे 3200 से। अब अगर हम स्टेज 1 में हैं तो क्या करेंगे, सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सोनी एंड कंपनीज अकाउंट शेल बी डेबिटेड बाय 3200। अगर हम स्टेज 2 में हैं तो क्या करेंगे, सोनी एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और सिमिलरली स्टेज 3 में एंट्री हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं तीनों स्टेजेस में। तो देखिए, स्टेज 1 में एंट्री नहीं होगी, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे। सेकेंड स्टेज में सोनी एंड कंपनी टू सस्पेंस। थर्ड स्टेज में नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना है। नॉमिनल अकाउंट अगर नहीं है तो जो एंट्री हमने सेकेंड स्टेज में बनाई है वो ही थर्ड स्टेज में बन जाएगी। तो देखिए, आराम से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंपनी की इंफॉर्मेशन है हमारे पास मशीनरी से रिलेटेड। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लें, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स 17 to 20। और हमारे पास मशीनरीज आ रही हैं, जा रही हैं। तो एक मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं 2017 से 2020 तक। 1 by 1 ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं और पोस्ट करते जाते हैं मशीनरी अकाउंट में। तो मशीनरी अकाउंट का आप एक फॉर्मेट बना लो।
तो क्वेश्चन देखते हैं. Messrs JP Wires Company purchased a second-hand machine on 1st January 17 for rupees 320. Overhauling and erection means installation charges amounted to rupees 80,000. तो यानी कि मशीन की कॉस्ट ये हो जाती है 4 लाख रुपीज़. Another machine was purchased for rupees 160 on 1st July 17. उसके बाद on 1st July 19. तो 17 में 2 मशीन खरीदी हमने, 18 में हमने कुछ नहीं करा. उसके बाद 19 में ट्रांजैक्शन हो रही है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ. अंडर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट 20% per annum on original cost. However, from the year 2020 मेथड को किया गया है चेंज, WDV at 15%. तो ठीक है, हम पहले 2017 और 18 ईयर्स के अंदर पोस्टिंग करते हैं. डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा रहेगा? 17 और 18 में. तो मेथड रहेगा SLM at a rate of 20%. तो 2017 हमने मशीन खरीदी 320, इंस्टॉलेशन चार्जेस 80,000. दूसरी मशीन खरीदी 160. डेप्रिसिएशन लगाएंगे 20% ओरिजिनल कॉस्ट. फर्स्ट मशीन 4 लाख का 20%, 4 लाख कॉस्ट का 20% 80,000. दूसरी मशीन 1,60,000 का, ये मशीन इस पर डेप्रिसिएशन लगेगी 6 मंथ्स पर. तो यानी कि 1,60,000 इंटू 20% इंटू 6/12, डेप्रिसिएशन आ गई 16,000. 96,000 की डेप्रिसिएशन. और ये हमने निकाला बैलेंस CD. 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन. डेप्रिसिएशन लगाएंगे दोनों मशीनरीज पर फुल ईयर के लिए. फर्स्ट मशीनरी 4 लाख इंटू 20% 80,000. सेकेंड 1,60,000 इंटू 20% 32. और ये आया हमारा बैलेंस कैरेट डाउन. आराम से देख लीजिए 2017 एंड 2018. फिर आगे चले 2019 बैलेंस ब्रॉट डाउन. फिर देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हो रही है. 2019 में मशीन इंस्टॉल्ड ऑन 1st January 17 was sold for rupees 1,60,000. यानी कि हमारी 4 लाख वाली मशीनरी, इसको तो हमने बेच दिया 1st जुलाई. और सेम दिन हमने दूसरी मशीन खरीदी. Another machine amounting to 60,000 was purchased and was installed on 30th September 19.
ये मशीन हमने 30 सितंबर को ख़रीदी है, यानी कि जो मशीन हमने ख़रीदी है उस पर 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, और जो मशीन हमने बेची है उस पर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन। सेल हमने 1 जुलाई को किया है, परचेज़ हमने 30 सितंबर को किया है 2019 में। तो दोनों की अकाउंटिंग करते हैं, सेल और परचेज़ की। तो ये हमने ख़रीदा 30 सितंबर को नेक्स्ट प्लांट 60,000 का। अब बात करते हैं सेल की। सेल हमने किया है 1,60,000 में। करंट ईयर डेप्रिसिएशन 6 महीने की लगेगी। 4 लाख की मशीनरी है, 20% पूरे साल की डेप्रिसिएशन लग रही है 80,000, तो 6 महीने की हो जाती है 40,000। ये डेप्रिसिएशन है ऑन सोल्ड मशीनरी। अब देखें लॉस ऑन सेल। मशीनरी मेरी है 4 लाख की। कब खरीदी थी? 2017 में। 2017 का डेप्रिसिएशन 80,000, 2018 का डेप्रिसिएशन 80,000, 2019 का डेप्रिसिएशन 40,000। देखें मशीनरी की बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। $2 lakh। बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल 2 lakh। सेल प्राइस 160। 2 लाख का सामान 1,60,000 में बेचा, लॉस ऑन सेल 40,000। लॉस निकाल के सेल मशीनरी का काम ख़त्म करके करंट ईयर डेप्रिसिएशन। करंट ईयर डेप्रिसिएशन के लिए 2 मशीनरी बची हैं, मशीनरी 2, मशीनरी 3। सेकेंड मशीनरी 1,60,000, 20% का रेट 32,000 की डेप्रिसिएशन। थर्ड न्यू मशीनरी 60,000, 20% का रेट, 2019 चल रहा है। SLM 20% ओरिजिनल कॉस्ट। 60,000 पे 20%, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। डेप्रिसिएशन आ गई 3,000। तो ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सारा प्लस माइनस कर दिया, बैलेंस कैरेड डाउन 137। आराम से देखिए 2019, फिर चलेंगे 2020 पर। तो 2019 के बाद फिर आगे चलते हैं 2020 में। ईयर 2020 के अंदर हमने कोई सेल परचेज नहीं करी है, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ है और नया वाला मेथड है WDV एट अ रेट ऑफ 15%। मशीनरीज़ की बात करें, मशीनरी 2 आ रही हैं हमारे पास, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट तो गई, इजी वाली पहले करते हैं हमेशा। थर्ड मशीनरी
60,000 की मशीनरी, डेप्रिसिएशन लगा है 3,000। तो अब रिटन डाउन वैल्यू आ रही है 57,000। तो इस साल क्या करेंगे, 57,000 पर 15%। अब देखते हैं सेकेंड मशीनरी, 1,60,000 की। पहले साल यानी कि 2017 लगाया हमने 16,000, 2018 में लगाया हमने 32,000 और 2019 में फिर से लगाया हमने 32,000। ये आ गई हमारी WDV और इस पर इस साल लगा देंगे 15%। तो आप चेक कर लो, डेप्रिसिएशन हो जाएगी 20,550 और ये हमारा बैलेंस कैरेड डाउन। और इसी के साथ ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। अब आप आराम से देख लो, कोई डाउट है तो क्लैरिफाई कर लो। ठीक है, क्लियर है? तो आप कह रहे हो कोई डाउट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी पार्ट, Universe Limited keeps no stock records, but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter. Valuation is at cost. Company's year ends on 31st March. Their accounts have been prepared to that date. Stock valuation taken on 31st March was, however, misleading. You have been advised to value the closing stock. हाँ, यही तो हम करने के लिए बैठे हैं. With the stock figure as on 31st December 20. ठीक है, कह रहे हैं 31st March 21 स्टॉक की वैल्यू कुछ ठीक नहीं आ रही. हम आपको 31st December 20 का अमाउंट दे रहे हैं, वहाँ से 31st March 21 तक आप पहुँच जाओ. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं. कॉस्ट ऑफ स्टॉक हमारे पास है 240. ऑन 31st December स्टॉक शीट में गड़बड़ हुई. जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि स्टॉक के लिए हम अकाउंट नहीं बनाते, हम शीट बनाते हैं. स्टॉक शीट में गड़बड़ हुई. टोटल 15,000 था, हमने कैरी फॉरवर्ड कर लिया 18,000. बहुत आसान है. 15 की जगह आपने 18 कर लिया, रेक्टिफाई कर लो. क्या करोगे? माइनस 3,000. दूसरी गलती, टोटल हैज़ बीन अंडरकास्ट.
तो आपने जो है टोटल हैज़ बीन अंडरकास्ट, आपने कम दिखाया है, ठीक कर लो, बढ़ा देते हैं, +600। फिर आई हमारे पास परचेजेस। इनवॉइस ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम January to March totaled 2,10,000। परचेजेस है यानी कि प्लस करनी है, 2,10,000। इसमें से कह रहे हैं 9,000 रिलेट टू गुड्स प्रायर टू 31 दिसंबर। तो ये हमारे रेलेवेंट पीरियड की नहीं है, इसको माइनस कर देते हैं। उसके बाद इनवॉइसेस एंटर्ड इन April 21। Invoices entered in April 21 relating to goods received in March 2021। ये इनवॉइस हमारे रेलेवेंट पीरियड की है, इसको ऐड कर देते हैं। ये परचेजेस हैं जो हम शो करेंगे। सिंपल फंडा है। जो जनवरी टू मार्च की नहीं है हटा दो, जनवरी टू मार्च की हैं उसको ले लो। तो हमने 9,000 हटा दिया, 12,000 ले लिया। सिमिलरली सेल्स पर आते हैं। सेल्स क्या हो जाएगा, -2,70,000। इसमें से 15,000 31 दिसंबर से पहले की हैं, तो इसको हम नहीं लेंगे, -15। उसके बाद 12,000 ये मार्च के महीने की हैं, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारी सेल्स हैं, लेकिन ध्यान रखना है सेल्स के अमाउंट को सेल से एडजस्ट नहीं करना, कॉस्ट ऑफ सेल से एडजस्ट करना है। तो ये जो आपका अमाउंट आएगा इसमें से जीपी हटाएंगे और उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर credit notes at invoiced value of 3,000 has been issued to customers in respect of goods returned during that period। तो ये तो बहुत आसान है, ये तो सीधा सीधा सेल्स रिटर्न है। तो सेल्स हमने माइनस किया था, सेल्स रिटर्न प्लस कर देते हैं। 3,000 पर सेल रिटर्न भी कॉस्ट पे लाना पड़ेगा, माइनस कर देंगे हम मार्जिन। इतना प्लस माइनस करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री की वैल्यू। तो देखिए, चेक कर लीजिए सेकंड का बी पार्ट। देखिए प्लीज़ आराम से चेक कर लीजिए।
ठीक है, क्लियर है? तो इसमें भी आप कह रहे हो कोई डाउट नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, मिस्टर जेड एक्सेप्टेड अ बिल। ओके, तो हमें यहाँ पे बनानी है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई। तो ठीक है, Z ने बिल एक्सेप्ट किया है, Y ने ड्रॉ किया है। इसका मतलब Y हमारा डेटर है, हमें बनानी है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर या फिर डेटर। तो बना लेते हैं फॉर्मेट, चेक कर लेते हैं एंट्रीज। तो क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर जेड एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹50,000 ड्रॉन ऑन हिम बाय मिस्टर वाई ऑन 1 अगस्त फॉर 3 months। तो बिल ड्रॉ हुआ, तो पहली एंट्री हो गई हमारी BR2Z 50,000 रुपीज़ से। ऑन द सेम डेट Y गॉट द बिल डिस्काउंटेड फॉर ₹49,000। ठीक है, Y ने डिस्काउंट करा लिया। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू BR। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट एंट्री, ऑन द ड्यू डेट Z अप्रोच्ड Y फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो Z ने कहा कि भाई मेरा बिल जो है वो आप रीन्यू कर दो, और ये बिल हम ऑलरेडी बैंक से डिस्काउंट करा चुके थे। तो हमने क्या किया, Z अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट हमने बैंक को कर दी, तो Z टू बैंक 50,000 रुपीज़। उसके बाद बिल अग्रीड की कंडीशन देखिए। अब ये कह रहे हैं, अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, सिंपल है ना। 50,000 का बिल ड्रॉ हुआ, बिल डिस्काउंट हुआ, Z ने कहा मेरा बिल रीन्यू कर दो। अब आप एक बार कंडीशन पढ़ो कैसे रिन्यूअल हो रहा है, और फिर आप मुझे बताओ कितना अमाउंट कैश का है और कितना बिल का है। आराम से देखो। तो ये आप मुझे आंसर दे रहे हो और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। एक दो बच्चों ने गलती करी है, बट मेजॉरिटी का आंसर ठीक चल रहा है। कंडीशन ये है 10,000 रुपये भी कैश में आएंगे। इसके साथ साथ कह रहे हैं अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, 50,000 में से 10 आ गया, तो रिमेनिंग यानी कि 40,000 पे 12% के रेट पे 3 महीने का इंटरेस्ट भी आप दोगे कैश में। तो ठीक है, कैश में 10,000 प्लस इंटरेस्ट, 40,000 पे 12% 3 महीने के लिए, और बैलेंस के लिए आप मुझे बिल दोगे। तो बैलेंस हो गया 40,000, टोटल 50,000 है, इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा है क्योंकि रिन्यू हो रहा है। तो कैश ये अमाउंट हम देखें तो ये आ जाएगा 11,200। तो अब Z से हम ले रहे हैं कैश 11,200, और साथ में हम ले रहे हैं नया बिल 40,000 रुपीज़ का। तो देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज। तो देखो, पहले हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, Z टू इंटरेस्ट, और फिर हमने रिसीव कर लिया कैश BR2Z। फिर देखिए इसके बाद क्या हुआ,
On 31st December 2020, Z became insolvent. लो जी, इतनी मेहनत करने के बाद अब ये हो गए हैं इंसॉल्वेंट और हमें मिल रहा है 40%। फिर से ध्यान रखना, जैसे ही इंसॉल्वेंट हो जाएगा डेटर, सबसे पहली एंट्री पास होगी डिसऑनर की। तो ये हमने एंट्री को रिवर्स किया Z to BR। कितने से? जितना बिल हमारा था 40,000 का, 40,000 से हमने एंट्री को रिवर्स किया। अब हमें मिल रहे हैं 40,000 में 40%। क्या हमें नहीं मिल रहा? 40,000 पे 60%। तो कैश बैड डेट्स टू Z अकाउंट। छोटा सा प्यारा सा सवाल ख़त्म हुआ। जानकर आपको खुशी होगी 10 नंबर का है, बहुत आसान है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी हमसे, सीधा सीधा 10 मार्क्स हमारे हाथ में। देखिए, आराम से देखिए क्वेश्चन को। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। On 31st March, goods sold at a sale price of 30,000 were lying with customer Sapan, to whom these goods were sold on sale or return basis, recorded as actual sales। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो सेलर है वो कौन सा सेलर है? कैजुअल सेलर। Since no consent has been received from Sapan, you are required to pass adjustment entry, presuming goods were sent at a profit of cost plus 25%. So no consent received इसका automatically मतलब है specific time limit is yet to expire। अभी सपन के पास समय है हमें रिप्लाई देने का, इसलिए अभी तक हमारे पास रिप्लाई नहीं आया है। तो ये सिचुएशन क्या है कि 31 मार्च आ गई है, हमें अपनी अकाउंटिंग क्लोज करनी है। तो ये तो हम सबको पता है, उस दिन हमें 2 एंट्री पास करनी होती हैं। एक हम सेल की एंट्री रिवर्स करते हैं, दूसरा हम स्टॉक दिखाते हैं, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग। स्टॉक वाली एंट्री किस प्राइस से करते हैं? कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है कॉस्ट पे 25, 30,000 सेल में से हटाएंगे तो सेल का चाहिए, तो ये हो गया 20, सेल में से 20 हटाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 20% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब NRV की बात हो रही है। NRV अगर कॉस्ट से भी कम है तो फिर हम वैल्यूएशन किस पर करेंगे? डेफिनेटली NRV पर करेंगे। तो देखते हैं सॉल्यूशन। देखो आसान है, सबसे पहले हमने सेल को रिवर्स किया, सेल टू सपन 30,000, एंट्री को हमने कैंसिल किया। उसके बाद अगली एंट्री स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं,
30,000 में से 20% माइनस किया, 24, ये आ गई कॉस्ट। कॉस्ट के बाद अगर हम NRV निकालें तो NRV आ रही है कॉस्ट में से 20% माइनस करके 19,200। स्टॉक वैल्यूएशन, कॉस्ट और NRV विच एवर इज़ लोअर। तो यहाँ पर वैसे तो हमें मार्केट प्राइस की जगह क्या लिखना चाहिए, NRV, लेकिन मैंने आपको क्लास में भी बताया था बाई चांस ऐसा हो जाए पेपर में, इग्नोर कर दो, क्योंकि पेपर में कहीं कहीं मार्केट प्राइस ले लेते हैं जबकि उनके भाव क्या होते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, तो वहाँ पे शब्दों को जाने दो, भाव को पकड़ो। NRV की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन हो जाएगी 19,200 पर। देख लीजिए आराम से। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज ड्यू डेट है, वेरी इजी, बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको ड्यू डेट भी दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है और आपको सीधा सीधा कैलकुलेट करनी है एवरेज ड्यू डेट। तो ये तो आप सभी कर लेंगे, चेक कर लीजिए सॉल्यूशन। बेस डेट तो हम हमेशा सबसे पहले वाली ही लेते हैं ताकि उससे फिर वो माइनस वाली कैलकुलेशन से हम फ्री हो जाते हैं। तो बेस डेट 8 सितंबर, यहाँ से कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज ड्यू डेट 1 नवंबर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। हमारे पास है बिल्डिंग, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, बिल्डिंग फंड,
subscriptions and government securities. तो ऐसा करते हैं, एडजस्टमेंट के अलावा बाकी चीज़ें पहले पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद आएंगे एडजस्टमेंट पर. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस का क्या कोई यूज़ होगा? हाँ, आप समझ गए कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी जिससे हमें ओपनिंग कैपिटल फंड जो है मिलेगा. तो ओपनिंग बैलेंसेस तो हमारे वहाँ चले जाएंगे. सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, वो बाद में देखते हैं. गवर्नमेंट ग्रांट पर भी एडजस्टमेंट है. उसके बाद है डोनेशंस. डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड. तो अगर कैपिटलाइज नहीं करने हैं तो ये कहाँ चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट. उसके बाद हमारे पास है नेट कलेक्शन. ये भी कहाँ चली जाएंगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट. उसके बाद हमारे पास है सैलरीज 3600 फॉर 2019. तो क्या करना है? 15600 में से 3600 माइनस कर दो, है ना. हम तो सिर्फ इस साल की दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और बैलेंस अमाउंट चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. हॉस्पिटल फर्नीचर बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, अभी देखते हैं. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या करें? फुल अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर. डाइट एक्सपेंसेस फुल अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर. रेंट एंड रेट्स 1000 इनकम एक्सपेंडिचर. हाँ, पूरा नहीं जाएगा. 1000 में से 150 माइनस करेंगे और ये 150 हमारी बैलेंस शीट में एडवांस रेंट 2021 का है ये. फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ऑफिस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट्स पर एडजस्टमेंट है, बाद में देखते हैं. बैलेंसेस क्लोजिंग ये चले जाएंगे हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में. तो एक बार इतना जितना डिस्कस करा है हमने, पहले हम उतना जो है पोस्टिंग कर देते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखें तो डोनेशन, शो से हमारी कलेक्शन, देन सैलरी, डाइट, रेंट एंड रेट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ऑफिस एक्सपेंस. ये सारा हमने डाल दिया है. फिर देखें हम बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में तो हमने रेंट डाला है 150 और क्लोजिंग बैलेंसेस. अभी हमने विदाउट एडजस्टमेंट्स चीज़ों को लिया है. फिर देखें ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बस इतना ही अभी हमने लिया है. अब देखते हैं 1 by 1 एडजस्टमेंट. ठीक है, एडजस्टमेंट देखते हैं. पहले आप मन में सोचना क्या करेंगे, फिर देखेंगे सॉल्यूशन क्या है. एडजस्टमेंट हमारी अब आ रही है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31st December 20. 31st December 20 कह रहे हैं भाई इस दिन हमारी बिल्डिंग की वैल्यू है 70,000 और बिल्डिंग हमारे
बिल्डिंग हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में भी आ रही है, एडिशन टू बिल्डिंग 25,000। ठीक है, तो अब पहले आप सोचो इसका क्या करेंगे हम। है ना, बात समझ में आ गई कि भाई हमने 25,000 यानी कि ड्यूरिंग द ईयर खरीदा। तो हम गए हमारी बैलेंस शीट के अंदर, ओपनिंग बैलेंस 45,000, एडिशन हमने डाली 25,000 और ये हमारी बिल्डिंग आ गई 70,000 की। इसी के साथ साथ मिलती जुलती एडजस्टमेंट आ रही है बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड हमारे पास आ रहा है 40,000 का। तो बिल्डिंग हमारे एसेट साइड पर और बिल्डिंग फंड हमारी लायबिलिटी साइड पर। तो बिल्डिंग एंड में 70,000 है, 25,000 की हमारी एडिशन है, इसका मतलब ओपनिंग 45,000 है। तो हमने हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर डाल दिया 45,000 और ये हमारा बिल्डिंग का छोटा सा वर्किंग नोट। डेप्रिसिएशन के बारे में कोई बात नहीं हुई है। सिमिलरली हॉस्पिटल इक्विपमेंट, इसका बैलेंस आ रहा है 25,500, 25,500 और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखें तो हॉस्पिटल इक्विपमेंट है 8500 का। तो हमने कहा भाई एंड का बैलेंस 25,500, इक्विपमेंट हमने खरीदा 8500, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस रहा होगा 17,000 रुपये। और ये ओपनिंग हमने डाला हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में 17,000। उसके बाद इंफॉर्मेशन है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31 दिसंबर 19, यानी कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग 3250। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगी, सब्सक्रिप्शन है इसलिए एसेट साइड पर 3250 और ये हमारा बिल्डिंग फंड भी आ रहा है 40,000 का। सब्सक्रिप्शन क्योंकि एक एडजस्टमेंट है ये तो हमने डाल ही दिया। इसी के साथ साथ सब्सक्रिप्शन को पूरा कर लेते हैं। तो देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन 3 टुकड़ों में दे रखी है आपको, तीनों सालों में। ये सब्सक्रिप्शन दे रखी है 2019, 20, 21 और साथ ही साथ जो है एडजस्टमेंट में थी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 3250। ठीक है, अब आप पहले सब्सक्रिप्शन देखो इसको कहाँ कहाँ दिखाना है। ठीक है, चेक कर लें अब ये कहाँ कहाँ दिखाना है हमें। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो हमने दिखाई दी, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग आ रही थी 3250। इसके बाद फिर चले हम हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हमारी 700, ये हमने यहाँ पे दिखाया 700। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये आ रही है हमारी 1200। सेवन 700 तो समझ गए होगे ना आप, 3250 का बैलेंस आ रहा था और
सब्सक्रिप्शन फॉर 2019 हमें मिल गई है 2550, है ना, पिछले साल से जो अरियर्स में चल रही थी, पर क्योंकि हमें पूरी नहीं मिली है तो अभी भी रिसीवेबल रह गई है 700। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से दिख रहा है 1200 की सब्सक्रिप्शन। उसके बाद चले हम हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो 2020 की सब्सक्रिप्शन आएंगी 12,250। ठीक है, फिर देखते हैं हम हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ रही हैं 10,000। ठीक है, इसका मतलब है हमने इसी साल ली है इन्वेस्टमेंट्स, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी लिखा है इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मेड ऑन 1 जुलाई 20। तो कंफर्म हो गया हमने इसी साल ली है इन्वेस्टमेंट्स। तो एक तो हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं 10,000, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ली है हमने 1 जुलाई। तो क्या इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं? 10,000 पे 8% 6 महीने के लिए, 10,000 पर 8% 6 मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट आ जाता है हमारा 400। अब अगर हम हमारा रिसीट एंड पेमेंट देखें, रिसीट एंड पेमेंट में इस इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, इसका मतलब हमें नहीं मिला, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हमारा अक्रू हो चुका है 400 रुपये से, और साथ ही साथ इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं 400। ठीक है, एडजस्टमेंट हमारी सारी हो गई, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, बिल्डिंग फंड, सब्सक्रिप्शंस, इन्वेस्टमेंट्स। अब एक बार दोबारा रिसीट एंड पेमेंट चेक कर लेते हैं, कुछ छूटा तो नहीं है। बैलेंस, सब्सक्रिप्शंस, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट देखो जो बिल्डिंग की है, क्या करेंगे, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। मेंटेनेंस और पेशेंस, ये दोनों जो गवर्नमेंट ग्रांट है इसको कैसे दिखाएंगे, रेगुलर इनकम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो दिखा देते हैं 3 हमारी गवर्नमेंट ग्रांट है। तो देखो 2 गवर्नमेंट ग्रांट्स तो हमारी ये रही 10,000 2400, और जो हमें बिल्डिंग के लिए मिली है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हमने बिल्डिंग में ऐड कर दी 80,000। ये दोनों वर्किंग नोट भी क्लियर ही हैं हमें, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हमने अभी चेक किया ही था कि पिछले साल का 3250 था, उसमें से इस साल 2550 मिले हैं, ये रिसीट एंड पेमेंट में दिखाया हुआ है। तो अभी हमें और भी मिलना बाकी है 700। फिर वापस चले रिसीट एंड पेमेंट में, देखें कुछ छूटा तो नहीं। रिसीट साइड कंप्लीट, पेमेंट साइड, सैलरीज में से 3600 2019 की हैं, तो ये कहाँ दिखेंगी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। उसके बाद हॉस्पिटल फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर हमने इस साल ख़रीदा है, ये दिखेगा हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बिल्डिंग, प्रिंटिंग, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट्स, बैलेंस सारा कंप्लीट हो गया।
ये दोनों चीज़ें पोस्ट कर देते हैं। ये हमने पोस्ट की सैलरीज 3600 और हमने पोस्ट किया फर्नीचर 3000। फिर से चेक कर लें, एडजस्टमेंट हमारी सारी कंप्लीट है। रिसीट एंड पेमेंट हमने पूरा चेक कर लिया, सब कंप्लीट है। अब बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट। अब एक बार आप फिर से चेक भी कर लो, आप साथ साथ बना रहे हो अकाउंट, दोबारा चेक कर लो कोई अमाउंट छूटा ना हो। ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर 24,650। फिर इसके बाद देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आराम से चेक कर लो सारे अमाउंट। और एक्सेस ऑफ इनकम ये आपका आना चाहिए 8000। ठीक है, क्लियर है हमारा छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया है ये, तो उम्मीद है फुल 20 मार्क्स आएंगे, इसमें ज़्यादा कहीं गलती नहीं होगी। हाँ, ध्यान से तो करना पड़ेगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। Question number 5. Following are the balances. और हमारे पास कुछ है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। तो देख लेते हैं एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पर है। परचेजेस इंक्लूड सेल्स रिटर्न, सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न। परचेज सेल्स में एडजस्टमेंट है। फ्री सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैम्पल का मतलब जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस, goods withdrawn by Mr. Vijay for own consumption included in purchases। जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो आसान है, परचेज में सेल्स रिटर्न है, परचेज में से हटा देंगे, सेल्स में दिखा देंगे। सेल्स में परचेज रिटर्न है, सेल से हटा देंगे, परचेज में दिखा देंगे। सेकेंड ट्रांजैक्शन एडवर्टीजमेंट टू परचेज, एडवर्टीजमेंट में बढ़ाएंगे, परचेज से हटाएंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन ड्राइंग्स टू परचेज,
ड्राइंग्स को बढ़ाएंगे, परचेज को घटाएंगे। wages paid for installation of plant and machinery amounting to 900 included in wages। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट टू वेजेस। तो क्या करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाएंगे और वेजेस को कम करेंगे। ठीक है, मेन तो इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट समझते जाना, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एडजस्टमेंट क्लियर है। फोर्थ एडजस्टमेंट वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन पर है तो एसेट की कॉस्ट का पार्ट है, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, वेजेस में से माइनस कर देंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। दोनों में से सबसे पहले डाउटफुल डेट का प्रोविजन बनता है, उसके बाद माइनस करके जो अमाउंट आता है उस पर बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डेटर्स। भाई सीधी सी बात है, पहले बैड डेट को हटाओ, फिर जो बचे हुए हैं उनके बारे में सोचेंगे कि हम उनको डिस्काउंट दें। जिसने पैसा ही नहीं देना, डेट बैड ही हो जाएगा, तो उसके बारे में डिस्काउंट का क्या सोचें। तो पहले हमेशा प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद माइनस होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे हमने क्लास में सीखा है। हम इसका अकाउंट बनाएंगे ताकि हमसे बिल्कुल भी गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगानी है तो आसान है, प्लांट एंड मशीनरी पर और फर्नीचर पे, और फिर है हमारा क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ जहाँ एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट को हम कर लेंगे। तो हमारा ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, आप पहले फॉर्मेट बना लो, फिर हम एक एक अमाउंट डालेंगे और उसको पोस्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन के अंदर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर एक एडजस्टमेंट थी वेजेस की, 900 के वेजेस। तो प्लांट एंड मशीनरी हम चलेंगे हमारी बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी है 39,100 की, जो हमारे पास बैलेंस आ रहा है। इस पर एक ही एडजस्टमेंट है वेजेस की, 900 के वेजेस हमने ऐड कर दिए, तो ये अमाउंट आ गया 40,000 रुपये। उसके बाद है फर्नीचर एंड फिटिंग 20,500। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट लास्ट में कर देंगे। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट 160, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैपिटल अकाउंट 130,
ड्राइंग्स पर हमने देखा था एडजस्टमेंट है 16,000 की गुड्स ड्राइंग्स गिवन है, प्लस हमने देखा था एडजस्टमेंट प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए थे 7,000 के, और तो 23,000। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस हमारी हैं 3,20,000 की। जो हमें दिख रही हैं, बैलेंस हमारे पास जो आ रहा है, इसके अंदर एडजस्टमेंट थी हमारे पास, 3 एडजस्टमेंट हैं। एक तो इसमें रिटर्न है, एक एडवर्टीजमेंट का सामान है, और एक ड्राइंग्स है। तो सबसे पहले तो रिटर्न का अमाउंट माइनस करते हैं। ठीक है, रिटर्न का अमाउंट है 5150। ठीक है, ये तो हो गया रिटर्न। उसके बाद हमारे पास है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट किया है हमने 1650, है ना। उम्मीद है क्वेश्चन पेपर आपने अलग से डाउनलोड कर लिया होगा ना, क्योंकि अब इकट्ठे पेपर और सॉल्यूशन तो नहीं खुल पाएंगे। तो वो आपके सामने पेपर है, उसमें एडजस्टमेंट है, तो वो आप देखो। एडवर्टीजमेंट जो हमारी हो रही है 1650 की। उसके बाद इस पर एडजस्टमेंट आ रही है ड्राइंग्स की। जगह ही नहीं है मेरे पास, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं। अगली बार ये गाना सुनो तो क्या याद करना, फाइनल अकाउंट्स माइनस। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ, यहाँ पर माइनस किया हमने 7,000। और कोई एडजस्टमेंट परचेज की नहीं है तो भगवान जी का नाम लेके चेक कर लो। 3,06,200 हमारे पास आना चाहिए, है ना। आ गया है 3,06,200। और इसमें जो हमारा रिटर्न था सेल का, वो यहाँ से माइनस कर देते हैं, सेल में से 5150। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक 64,500, नो एडजस्टमेंट। वेजेस हमारे पास 24,330। याद है इस पर एडजस्टमेंट थी, प्लांट एंड मशीनरी की वेजेस माइनस करते हैं 900, तो 23,430। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए हम अकाउंट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और 6400 जो बैलेंस आ रहा है ये हो जाएगा बैलेंस BD। बैलेंस ब्रॉट डाउन 6400। फिर हमारे पास है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दिखा देते हैं 900। याद है ना, क्लास में वो क्वेश्चन में अच्छे से डिटेल में किया हुआ है, बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड आपस में एडजस्ट नहीं होंगे।
डिटेल में करा था, बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकते आपस में। तो बैड डेट रिकवर्ड अलग से आएंगे 900। उसके बाद हमारे पास है सैलरीज 45,100। फिर है सैलरीज पेबल, बैलेंस शीट 4900। फिर है प्रीपेड रेंट 600। सिंपल रूल, बैलेंसेस सारे एक जगह जाएंगे, एडजस्टमेंट सारी दो जगह। उसके बाद है हमारे पास रेंट 8600। कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड 2250, आउटवर्ड 2700। फिर हमारे पास है सेल्स और एडवर्टीजमेंट, दोनों पे एडजस्टमेंट थी। सेल्स हमारे पास है 4,30,600। इसमें कह रहे हैं परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है 3450 की। माइनस कर देते हैं, चेक कीजिएगा 427150 आ रहा है या नहीं। और ये परचेज रिटर्न फिर हम यहाँ से भी माइनस कर देते हैं। और दोनों के हमारे आउटर कॉलम्स के अमाउंट आ जाएंगे। फिर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की। एडवर्टीजमेंट बैलेंस गिवन है 6700 और हमने इस पर एडजस्टमेंट देखी थी, अमाउंट था 1650। तो प्लस करके टोटल अमाउंट 8350। उसके बाद हमारे पास है प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ऑलरेडी डिस्काउंट है 2750 का। पहले देखना पड़ेगा इस साल हमें बनाना कितना है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डेटर्स हैं 240 के। डेटर्स हम पोस्ट कर देते हैं 240 माइनस दोनों प्रोविज़न अभी करेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स हैं 95,000 के। उसके बाद बैड डेट्स हैं, तो हम प्रोविज़न अकाउंट बना रहे हैं, तो बैड डेट्स उसी अकाउंट में जाएंगे। तो 2 बैड डेट्स। $2,200। फिर हमारे पास है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 2900, 6250। फिर है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2500, ऑफिस एक्सपेंसेस 20,320 और है इंटरेस्ट ऑन लोन 6000। ठीक है, बैलेंसेस हमने पोस्ट कर दिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट कर ली हमने, सेकंड कंप्लीट है, दोनों इफेक्ट। थर्ड कंप्लीट है, फोर्थ कंप्लीट है, फिफ्थ। प्रोविज़न बनाते हैं डाउटफुल डेट्स पर 5% के रेट पर, तो बैलेंस CD। हमारे डेटर्स आ रहे हैं 2,40,000 और प्रोविज़न का रेट है 5%।
12,000 का क्लोजिंग प्रोविजन, डिफरेंस जाएगा P&L। $7,800। और अब क्या करेंगे, ये जो बैलेंस सीधी है डेटर्स में से जाके माइनस, और जो P&L का अमाउंट है वो P&L में पोस्ट करेंगे। तो दोनों काम करके आते हैं। डेटर्स में से माइनस करेंगे हम प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्लोजिंग बैलेंस 12,000, और P&L में शो करेंगे हमारी बैलेंसिंग फिगर 7,800। तो देखो जैसे यहाँ पर जो सोल्यूशन है उसमें तो ऐसे शो किया हुआ है, टू बैड डेट 2,200, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,600। ठीक है, आपको पता है मैं क्लास में ऐसे नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ इसमें गलती हो सकती है, तो इसलिए ये भी कर सकते हैं, तरीका ठीक है, लेकिन गलती के चांसेस रहते हैं, तो हम हमारे वाला करेंगे। हमने क्या किया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट कितना 7,800। मेथड आप कोई भी फॉलो कर लो, अमाउंट सेम ही आएगा। जैसे अब यहाँ पे देख रहे हो ना आप, 2,200 के बैड डेट, 5,600 का प्रोविजन, तो अमाउंट तो 7,800 ही आएगा। लेकिन हम हमेशा अकाउंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि उससे फिर कभी गलती नहीं होती। तो हम करेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,800। उसके बाद बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2.5% के रेट पर। अब ये 2.5% किसका निकालेंगे हम, डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करके। पहले बैड डेट को निकालो, बचे हुए गुड डेटर्स को हम देंगे डिस्काउंट। तो ये हमारा प्रोविजन, इसमें से डाउटफुल डेट माइनस किया और बैलेंस पर बनाया हमने 2.5%। $5,700 का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और ये सारा हमने डेटर्स में से माइनस कर दिया। P&L अकाउंट में कैसे दिखाएंगे, हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस आ रहा है 2,750 का, तो P&L में भी देखो जाएगा तो इतना ही, 5,700 जाएगा, तो यही वो जाएगा, बस कैसे, इस तरीके से। हमने कहा भाई 5,700 का प्रोविज़न चाहिए, 2,750 का हमने बना रखा है, तो अभी और डाल देते हैं हम 2,950। तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बैलेंस था उसके अलावा हमें जितना चाहिए वो हमने डाल दिया 2,950। उसके बाद डेप्रिसिएशन लगानी है, प्लांट एंड मशीनरी 15%, फर्नीचर फिटिंग 10%, और पोस्ट करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। दोनों ही सबसे आसान एडजस्टमेंट है, कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन 15% और 10%। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो देखो अब आप इसको आराम से कंप्लीट करो। ट्रेडिंग अकाउंट आपके सामने है, सबसे पहले ट्रेडिंग चेक कर लो,
जीपी निकाल लो। जीपी चेक करने के बाद फिर चेक करेंगे P&L। और फिर P&L के बाद बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। The following is the balance sheet of Messrs Krishna Brothers partnership firm है। Sumit died on 1st April and following agreement was put into effect. बैलेंस शीट देख रहे हैं हम, सिंपल सी बैलेंस शीट है। और उसके बाद हमारे पार्टनर की हो गई है डेथ, बड़े ही दुख की बात है। अब उसकी डेथ हो गई है और हमें करने हैं एसेट्स को रीवैल्यू। एसेट्स हम रीवैल्यू कर रहे हैं। गुडविल हम वैल्यू कर रखी है हमने 18,000 पे, क्रेडिटेड विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट बहुत आसान है। गेनिंग पार्टनर्स जाने वाले पार्टनर्स को गुडविल देंगे। 6,000 to be paid to the executors, and after death of Sumit, Amit and Lalit share profits equally. क्वेश्चन तो देखने में सिंपल लग रहा है, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। You are required to prepare journal entry for goodwill, वो तो हम वैसे भी करते। Revaluation account and capital account of partners, okay। तो बना लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत ही आसान लग रहा है।
मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री और कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं। और कैपिटल अकाउंट्स में हमारे कैपिटल के बैलेंसेस, साथ में हमारा जनरल रिजर्व, गुडविल की एंट्री तो हम करेंगे ही। तो देखते हैं हमारे दोनों आसान से अकाउंट। देखो सबसे पहले गुडविल की एंट्री देख लें। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 18,000 की हमारी गुडविल है और पार्टनर का शेयर देखें तो भाई 1:1:1 है, तो 1/3। तो 6,000 जो है वो जाने वाले पार्टनर की गुडविल बनती है। बाकी दोनों पार्टनर्स गेनिंग रेशो में देंगे। आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है, तो वैसे गेनिंग रेशो भी इसमें 1:1 ही आएगा। तो अमित और ललित दे देंगे सुमित को। तो जनरल एंट्री बन गई अमित ललित टू सुमित। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है ना, ये तो आसान है। फिर देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये तो और भी आसान है। तो देखो आराम से देखो, मशीनरी फर्नीचर इन्वेंट्री बेहद आसान। डन। फिर देखें कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट गेनिंग रेशो के लिए 1:1 है। कैपिटल अकाउंट देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, जनरल रिजर्व, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, फिर हमारी गुडविल की एंट्री अमित ललित टू सुमित, तो बाय अमित बाय ललित और ये आ गया टू सुमित, है ना। बस इतना ही है, अकाउंट खत्म। अमित ललित का हमने बैलेंस शीट निकाल दिया और सुमित के केस में जितना बैलेंस आया उसमें से 6,000 पे कर दिया, बाकी लायबिलिटी दिखा दी कि अभी हमें पे करना है ना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, डन। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हम। शेयर कैपिटल, कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 10 लाख शेयर्स, 100 ईच, 10 + 30 + 30 + 30, बहुत बढ़िया, कोई प्रीमियम नहीं है। ऑल शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड, और भी बढ़िया, प्रोराटा भी नहीं है। Shareholder holding 15,000 shares paid the whole of the amount along with allotment, बहुत ही बढ़िया। फॉरफीचर भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, रीइशू भी नहीं है, रादर हमें एडवांस में पेमेंट आ गई है। बड़े अच्छे कर्मा हमारे रहे हैं, कुछ नुकसान नहीं, एडवांस में पेमेंट और आ गई है। कह रहे हैं भैया आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दो और इंटरेस्ट की पेमेंट भी रिकॉर्ड कर लेना। देखो इंटरेस्ट का रेट नहीं है तो क्या लगाना है, टेबल F लगाना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेएबल एट अ रेट ऑफ 12%, है ना। इसमें जो टेक्निकल पार्ट है वो इंटरेस्ट ही रहेगा, बाकी तो कुछ है नहीं जर्नल एंट्रीज में। तो पहले आप बाकी जर्नल एंट्रीज देख लो तो बहुत आसान है, और लास्ट में हम इंटरेस्ट का एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। तो देखिए चेक कीजिए, शेयर एप्लीकेशन से स्टार्ट कीजिए। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन।
फर्स्ट एंट्री इजी है, फिर आगे चलते हैं। और क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़ीरोज़ हैं तो बहुत अच्छा काम किया गया है कि जर्नल को इन लैक्स बनाया जाए, अदरवाइज़ ज़ीरो लिखते लिखते बहुत टाइम चला जाएगा। खैर हमने तो क्लास में प्रैक्टिस ऑलरेडी करी ही है, तो आप लोगों को तो आदत है कि जहाँ ज़ीरोज़ बहुत सारे हैं वहाँ लैक्स या थाउजेंड्स में बनाया जाए ताकि हमारा टाइम सेव हो। सारा कुछ आसान चल रहा है। कॉल्स इन एडवांस आप समझ गए होगे ना। 15,000 शेयर्स पर, और अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल भी दी है और सेकंड कॉल भी। 30 + 30 60 रुपीज़, सो 9 लाख। फिर और आगे चेक करते हैं एंट्रीज। ठीक है, क्लियर है, आसान चल रहा है। फिर आगे, और हम आ गए इंटरेस्ट की एंट्री पर। इंटरेस्ट की एंट्री को थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इंटरेस्ट के अमाउंट को। देखो यहाँ पर 2 कॉल्स दोनों एडवांस में आई हैं, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, दोनों पे इंटरेस्ट बनेगा। अमाउंट हमारे दोनों कॉल्स पे 30 रुपीज़ है। तो ये हमारा अमाउंट, रेट हमारा चल रहा है 12%। अब देखना है टाइम। भाई देखो, इंटरेस्ट का सीधा सीधा मतलब होता है, मैंने जिस दिन मांगा है उससे आप मुझे जितने दिन पहले देते हो उतने का इंटरेस्ट मैं आपको दूंगी। अब आप अपना क्वेश्चन देखो, भाई मैंने फर्स्ट कॉल मांगी है 1 नवंबर को, ठीक है। कंपनी ने कहा आप हमें पैसा देना 1 नवंबर को, लेकिन शेयर होल्डर ने दिया है अलॉटमेंट के समय, जो कि हुई है 1 जून को। और कंपनी कह रही है हमने इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो जिस दिन करी है दैट इज 1 मार्च। ठीक है, कंपनी इंटरेस्ट को पे कभी भी करे, इंटरेस्ट बनेगा कितने समय का? इंटरेस्ट बनेगा इस समय का, क्योंकि ये जो 1 मार्च आ रहा है ना, ये मान के चलो ये फाइनल कॉल के साथ आ रहा है, फाइनल कॉल की डेट 1 मार्च है। भाई इंटरेस्ट मैं कितने समय का दूंगी? जितने महीने पहले आपने मुझे पेमेंट दी है। मैंने पेमेंट मांगी है 1 नवंबर को, आप मुझे दे रहे हो 1 जून को, आप मुझे 5 महीने पहले पेमेंट दे रहे हो, तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगी 5 महीने के लिए। ऐसे ही फाइनल कॉल मैंने आपसे मांगी है 1 मार्च को, आप मुझे दे रहे हो 1 जून को। मैंने पैसा मांगा 1 मार्च को, आप दे रहे हो 1 जून को, आप मुझे पेमेंट दे रहे हो 9 महीने पहले। 9 महीने पहले पेमेंट दे रहे हो, तो 9 महीने का इंटरेस्ट कंपनी आपको देगी। तो फर्स्ट कॉल पे 5 महीने, फाइनल कॉल पे 9 महीने, ये इंटरेस्ट हमारा आएगा 63,000 दोनों को मिलाकर। 22,500 and 40,500। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 63,000
इतना बनता है, इतना शेयर होल्डर को पे कर देंगे। आसान सा प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर चलते हैं अगले पार्ट पर। टिम लिमिटेड issued 10,000 8% debentures, nominal value 10 lakh as follows: 2 persons for cash at 90% of nominal value, इसका मतलब 10% डिस्काउंट है। 2 vendor for purchase of fixed asset 2 lakh, 250 nominal value, अगेन 50,000 डिस्काउंट है। To the banker as collateral security for a loan 2 lakh 250 nominal value। तो भाई 3 तरीके से डिबेंचर इशू होते हैं। क्वेश्चन ने आपसे तीनों पूछ लिए हैं, तीनों को बनानी है जर्नल एंट्री। तो ये तो आसान है, चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन, फर्स्ट और सेकंड इनफैक्ट दोनों ही देख लो। तो नॉमिनल वैल्यू जो हमारी चल रही है 5 लाख, 10% का डिस्काउंट है ना। तो 5 लाख के डिबेंचर्स हो गए, 10% का डिस्काउंट हो गया। ये एप्लीकेशन आप डालो तो ठीक है, ना डालो डायरेक्ट एंट्री बनाओ तो भी ठीक है। बैंक डिस्काउंट टू डिबेंचर सीधा भी बना सकते हो, यहाँ एप्लीकेशन के थ्रू 2 एंट्री बनाई हुई हैं। तो ये तो आसान है, 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू, 50,000 का डिस्काउंट। आगे आ जाते हैं, फिक्स्ड एसेट हमने लिया है, हमने वेंडर से फिक्स्ड एसेट खरीदा 2 लाख का, तो हमने किया भाई फिक्स्ड एसेट टू वेंडर 2 लाख। अब हम जब पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स के थ्रू, तो वेंडर को डेबिट किया 2 लाख से, लेकिन डिबेंचर्स हमने इशू किए हैं 2.5 लाख नॉमिनल वैल्यू के। इसका मतलब क्या हुआ, 50,000 का डिस्काउंट है। अगेन वेरी इजी। उसके बाद हमने बैंकर को इशू किए हैं एज कोलैटरल सिक्योरिटी, हमने लोन लिया है 2 लाख का। तो एक एंट्री तो हम लोन की बना रहे हैं, बैंक टू बैंक लोन 2 लाख। अब लोन के बदले जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं अकाउंटिंग के। एक ऑप्शन जो यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर ऑप्शन लिया गया है नो एंट्री वाला, कि हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में लिख देंगे कि हमने इतने डिबेंचर्स एज कोलैटरल इशू किए हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन है बिना एंट्री वाला। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा था, याद आ गया होगा, उसमें हम एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनाते हैं हम, यस करेक्ट, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। क्योंकि ये झूठे मूठे वाले डिबेंचर्स होते हैं ना, ये अभी तो डिबेंचर्स कोई है नहीं। ये डिबेंचर्स एक्टिवेट कब होते हैं, जब हम लोन पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं, चाहे एंट्री बनाओ चाहे मत बनाओ, पेपर में कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन ऑप्ट किया गया है, हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर आप एंट्री नहीं बनाओगे तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर जो है, फिर वो आपको देना है एक नोट कि ये हमारे इस तरीके से डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ गए, अच्छा उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। लास्ट क्वेश्चन, causes of difference between balance shown by passbook and cash book। ये तो हमें पता है, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड एरर्स एंड ओमिशंस, या फिर which subsidiary books are normally used। तो ये तो हमें पता है, कितनी बुक्स हैं हमारी, 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। तो ये तो दोनों के ही आंसर हमें पता है और इजीली हम लिख सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है देख लीजिए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, डिफरेंस दोनों बुक्स में किस किस वजह से होते हैं।
तो एग्जाम्पल्स तो आप भी लिखोगे, लेकिन साथ में आप हेडिंग भी बनाना, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड एरर्स एंड ओमिशंस। और उसके बाद है हमारी 8 सब्सिडरी बुक्स। और इसी के साथ फिर आज की मुलाकात का सिलसिला भी आपसे ख़त्म हुआ, पेपर हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा और पेपर में आप बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपसे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।